वालेकुम एवरीवन। आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 एडवेंचर ऑफ डैंग डिटेक्टर की एक्सरसाइज नंबर ए पार्ट 2। एक्सरसाइज ए का पार्ट 1 यानी क्वेश्चन आंसर देते हैं, हमने पिछली वीडियो में कवर किए थे। इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास कमेंट ऑन इट इन रेड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो ये है वो हमारे पास साइड वर्ड्स। I could stand no more of it. I could stand no more of it. To not be able to stand something mean to be unable to tolerate something due to strong dislike. The landlady hated to see the Mr. Holmes suffering and could no longer tolerate inaction. She insisted on getting a doctor. B part हमारे पास The sight of me brought a gleam of recognition of his eyes. इसके हमारे पास When Holmes see Watson interrupts things as a reaction to his fake illness. Watson interprets this as a sign that Holmes is still just friend. He looked at him. Gleam often used to indicate an expression in the eyes that show that someone is amused or has a secret. Perhaps Holmes, who is known for such behavior, is amused well enough to recognize them. अब सी पार्ट है हमारे पास You are not yourself a sick man is but a child. To be yourself is to act naturally according to your who does not fully know themselves. He said that Holmes is like a child because children do not character and instructs, but Watson insists that Holmes' illness is making him act like someone away from know themselves well. D part है हमारे पास You will soften him, Watson. To soften someone, to weaken their resistance to someone or something. Holmes wants Watson to get the expert on his illness to come to him to despite the grudge he holds against Holmes. Next part है हमारा E part है It was within a sinking heart that I. Heart sinks mean to feel uneasy, apprehensive, disappointment or discouraged. When Watson re-enters Holmes' bedroom, he is uneasy because he is worried that his health will have deteriorated further. F part हमारे पास and don't bug whatever happened. Don't bug mean don't move. Holmes wants Watson to stay hidden. अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है Answer the following question with reference to contract. तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारे पास It was certainly, as you said, very surprising that he should not contract it an ascetic disease in the heart of London, a disease too of which I had made such a very special study. इसका हमारे पास फर्स्ट पार्ट Who is speaking to whom. तो आंसर हमारे पास मिस्टर कर्वेटन स्मिथ इज टॉकिंग टू शेरलॉक होम्स. सेकंड है Who is being referred to and what happened. Mr. Curtin Smith knew a Victor Swartz. He was murdered by Curtin Smith. थर्ड है From where did the disease break out. इसका आंसर है स्मार्टा एशिया. बी स्टेटमेंट हमारे पास The best way of succeeding a part is to be it. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास इसमें Who is speaking. इसका आंसर हमारे पास शेरलॉक होम्स. सेकेंड है Which part has he been acting. Holmes did not eat or drink for 3 days to make himself seem grown and weak. थर्ड पार्ट हमारे पास In what ways was he being it. He has been acting that the part of a very ill man who is close to death. फोर्थ पार्ट है हमारे पास What did the person want to do soon after this. He want to eat someone nutritious at the place called Simpsons. एक्सरसाइज बी हमारे पास वर्किंग विद वर्ड्स. क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास इनमें हमने इनके मीनिंग्स लिखनी है और उसके बाद इनके हमने सेंटेंसेस बनाने हैं. तो ये है हमारे पास
एक्सरसाइज बी वर्किंग वर्ड क्वेश्चन 1 वर्ड मीनिंग प्लस सेंटेंसेस। फर्स्ट वर्ड है हेक्टिक, इसका मीनिंग है डिफरेंट, बिजी। और सेंटेंसेस का संडे इज अ वेरी हेक्टिक डे फॉर माई मदर। बी है हमारे पास न्यूट्रिशियस, इसका मीनिंग हमारे पास फुल ऑफ न्यूट्रिशन या न्यूट्रिएंट्स। इसका सेंटेंस हमारे पास एप्पल इज अ फ्रूट दैट इज वेरी न्यूट्रिशियस। सी हमारे पास प्रोफ्यूजली, इसका मीनिंग है एक्स्ट्रा इन लार्ज क्वांटिटी। सेंटेंस हमारे पास वाटर वाज गेटिंग प्रोफ्यूजली फ्रॉम द पाइप। डी पार्ट हमारे पास रेस्पिंग, इसका मीनिंग हमारे पास हार्श साउंड एंड अनप्लेजेंट। सेंटेंस इसका हमारे पास आई हेard his breath rasping in his chest, या फिर इसका एक और सेंटेंस है ही मेड अ रेस्पिंग साउंड व्हाइल ट्राइंग टू ब्रीथ। ई पार्ट हमारे पास सेमी डिलीरियस, इसका मीनिंग हमारे पास बीइंग हाफ इज स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। सेंटेंस है इसका हमारे पास आफ्टर टेकिंग अ स्ट्रॉन्ग मेडिटेशन सी फेल्ट सेमी डिलीरियस एंड स्ट्रगल टू फोकस ऑन हर वर्क, या फिर इसका एक और सेंटेंस हो सकता है ही वाज सेमी डिलीरियस आफ्टर हाई फीवर। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉम्प्टनेस, इसका मीनिंग हमारे पास डूइंग समथिंग विदाउट डिले। सेंटेंस का फाद वाज नोन फॉर हिज बोल्डनेस एंड प्रॉम्प्टनेस ऑफ डिसीजन, यह भी इसका सेंटेंस है फाद इज नोन फॉर हिज प्रॉम्प्टनेस डिसीजन मेकिंग। जी हमारे पास निगर्ड, इसका मीनिंग है स्कॉर्नफुल वे या टू लाफ इन अ मैनर एज इफ मेकिंग फन ऑफ अदर पर्सन। इसका सेंटेंस हमारे पास ही ट्रिगर्ड क्वाइटली टू हिमसेल्फ। एच हमारे पास फास्ट का मीनिंग हमारे मूविंग एट हाई स्पीड। सेंटेंस का हमारे पास अरहम इज अ वेरी फास्ट रनर। आई पार्ट हमारे पास स्नार्लिंग, इसका मीनिंग हमारे पास टू मेक अ डीप ग्रोइंग साउंड। सेंटेंस इसका हमारे पास ही वाज स्नार्लिंग एट मी फ्रॉम डे वी मेट। ये पार्ट हमारे पास लेबर्ड का हमारा मीनिंग है डन विद ग्रेट एफर्ट्स। सेंटेंस इसका द मूवीज डायलॉग सीम्स वेरी लेबर्ड। ये पार्ट हमारे पास इंट्रूजन, इसका मीनिंग है एन एक्ट ऑफ इंट्रूडिंग या इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी। सेंटेंस इसका दे कंप्लेन अबाउट एक्सेसिव गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन। इसी के साथ हमारा इसका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी। Apostrophe is sometimes used to show a missing letter. When we write date, the apostrophe is used to show a missing number or letter. There is no apostrophe after the number 1930s and not 1930s. Next apostrophe is imitated in the plural form of observation. क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास insert apostrophe where necessary. तो फर्स्ट में हमारे पास apostrophe नहीं लगेगी, सेकंड में हमारे पास लगेगी 40 से पहले इंडी के बाद एपोस्ट्रोफी, फिर इसके बाद 40 पाकिस्तान गेंड इंडिपेंडेंस। सी पार्ट में हमारे पास 92 से पहले लगेगी, इन के बाद एपोस्ट्रोफी में 92, फिर ही स्कोर 550। फिर डी पार्ट में हमारे पास 86 से पहले लगेगी और DIG के बाद ई पार्ट में हमारे पास PM के S से पहले PM के बाद लगेगी। इस तरह पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये रीडिंग बेस्ड है। जैसे नेशन, नेशनल, नेशनली, नेशनलाइज, नेशनलाइजिंग, नेशनलिस्ट, इंटरनेशनल, नेशनैलिटी, नेशनलिस्टिक्स, नेशनलाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास वेयर डज स्ट्रेस ऑन इन दी फॉलोइंग। एक्सप्लेनेशन में हमारे पास एन ए पे स्ट्रेस होगा, इमेजिनेशन में भी एन ए पे होगा, डिस्टिनेशन में भी एन ए पे होगा, नॉमिनेशन में भी एन ए पे हमारे पास स्ट्रेस होगा और डिस्क्रिमिनेशन में भी एन ए पे होगा। इसी के साथ इस पे भी एन ए पे होगा। नेक्स्ट जितने भी वर्ड है ना सारे में एन ए पे होगा। स्ट्रेस गोस इन द साउंड एन ए। तो इसका जो नेक्स्ट एक्सरसाइज C, D और E जो है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द रीडिंग सेंस।